Hello everyone, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching. Today we are going to see the last chapter of class 3 Maths Olympiad, that is logical reasoning. In this chapter we are going to cover some topics. They are number pattern, figure pattern, find out odd figure or find out odd terms, ranking test, coding decoding, group of figures and figure matrix, day and dates and possible combinations, analogy, geometrical shapes in solids, embedded figures, mirror images, alphabet test. Now let's come to question number 1. Question number 1 says find out the odd one out. इसमें से odd one कौन सा है बताइए. अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी, सी और डी में लाइंस हैं, है ना, लाइंस ड्रॉ की गई हैं, लेकिन ए में कर्व है, बाकी किसी में भी कर्व नहीं है. सो दिस इज द डिफरेंट वन, ए. क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द पैटर्न्स 1, 2 and 3 ऑन द बेसिस टेल द नंबर ऑफ मैंगोज इन पैटर्न 8. पैटर्न 8 में कितने मैंगोज होंगे बताना. पैटर्न 1 में 4 है, पैटर्न 2 में 8 है, पैटर्न 3 में 12 है, तो 8 में कितने होंगे. 4 8s are 32. 32 mangoes will be there. Question number 3, which of the following alphabets is not hidden in the given figure. Okay, in this given figure, which among these one alphabet is not present in it, one is not hidden. X तो है, X is there. V is there. W, yes, W is also there. K is not there. K is not there. Now let us see question number 4. Question number 4 is, if day before yesterday was Sunday, then day after tomorrow will be day before yesterday was Sunday. Day before yesterday, तो yesterday क्या होगा. yesterday था Monday and today is Tuesday. So day after tomorrow will be Wednesday और Wednesday के बाद Thursday. Option number B. If ball is cap and cap is called pencil, pencil is called eraser and eraser is called bag, then Rohit will wear dash in sunlight. Rohit will wear cap in sunlight, but cap is called as pencil. So our option is pencil. Option C, pencil. रोहित कैप पहनेगा बट कैप को क्या कहा जाता है. कैप इज कॉल्ड पेंसिल. सो योर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, पेंसिल. Now let's come to question number 6. Question 6 is, study the given arrangement carefully and answer the questions. P, Q, R, S, T, U, V, W, है ना. If bug X is added on the left of P, अगर यहाँ पर एक bug को add किया जाता है और इसका नाम है क्या, इसका नाम है X. बग X इज एडेड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में ऐड किया गया. देन हाउ मेनी बग्स आर देयर ऑन द लेफ्ट ऑफ बग T. बग T के लेफ्ट में कितने बग्स हो गए. 1 2 3 4 5. ऑप्शन डी, 5. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. ये पैटर्न है, ये पैटर्न को हमें बताना है नंबर पैटर्न किस तरह से कंप्लीट करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न. इसमें से कौन सा वाला ये नंबर पैटर्न को कंप्लीट कर देगा. क्वेश्चन मार्क की जगह में इन चारों में से कौन सा होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं. 4 7 3, 5 7 3, 6 7 3, 7 7 3, 8 7 3, 9 7 3. क्या होना चाहिए था, 9 7 3. और यहाँ पे देखो 2 रेक्टेंगल के बाद एक ट्राइंगल है, 2 रेक्टेंगल के बाद एक ट्राइंगल. 9 7 3, 9 7 3 इन ट्राइंगल. तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. कैलेंडर इज गिवन टू यू. इफ सुमन टेक्स अ लीव ऑन 16th, अगर वो 16th को सुमन छुट्टी लेती है एंड कम्स ओनली ऑन इवन नंबर ऑफ डेज, देन हाउ मेनी डेज शी कम टू ऑफिस. संडे इज़ अ हॉलीडे. ओके, और इवन नंबर ऑफ डेज में आती, इवन नंबर यानी कि 2 4 8 10 12 14, 16 was holiday, so we are not going to count this. Then 18, 20 तो संडे है, 22, 24, 26, 28 and 30. कितने दिन हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 days. ऑप्शन बी 12 is correct.
Now let us see question number 9. Find the missing number if the same rule is followed in all the given figure. ये given figure को carefully देखिए, तो देखने पे आपको पता चलेगा कि 24 और 6 को मल्टीप्लाई किया गया है तो आंसर आया है 144। 32 और 8 को मल्टीप्लाई किया गया है तो आंसर आया 256 यानी कि 256। तो 49, 48 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 432 यानी कि ऑप्शन बी। नाउ मिरर इमेज के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। हाँ, और हमें बताना है कि इसकी इमेज यहाँ पर कैसी दिखेगी। देखो सी की इमेज दिखेगी ऐसी उल्टी, ए यहाँ पे दिखेगा और 8 दिखेगा और 7 इस तरह से है तो 7 ऐसे दिखेगा। गॉट इट। अब ये वाला इमेज देखिए कि कहाँ, चलिए ऑप्शन देखते हैं, वो नेक्स्ट पेज में है। तो ये जो मैंने आपको इमेज दिखाया ना वो आपका इमेज है बी। यहाँ पर ए में देखिए ऑप्शन 7 के जैसे ही दिख रहा है, लेकिन मिरर इमेज में उसको उल्टा दिखना है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन 11 में एक डॉग है, ये डॉग की इमेज, इधर वाले डॉग की इमेज क्या होगी, इसकी इमेज इस तरफ से इमेज होगी कि वो इधर से बैठा हुआ, यानी कि ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होगा। तो इन दोनों में से कौन सा होगा। अब देखिए डॉग को अगर आप केयरफुली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कि ना उसका वाइट कलर है और इस डॉग के यहाँ वाइट कलर है, लेकिन ये पूरा ब्राउन है, तो ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन। नाउ लेट अस सी डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 12 and 13. There is a certain relationship between the pair of figures on either side of identify the relationship of the given pair and find the missing figure. जो मिसिंग फिगर है उसको फाइंड करना है। यहाँ देखिए आप सी के बाद डी को नहीं लिया गया, उसके दूसरे वाले लेटर को लिया गया, अल्टरनेट लेटर्स को लिया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एच के बाद आई नहीं है, जे है, जे के बाद के नहीं है, एल है, अल्टरनेट लेटर्स को लिया गया। तो एम के बाद क्या होगा, पी, पी के बाद हमें क्यू को नहीं लेना है, क्यू के बाद क्या होगा, आर, आर के बाद एस को नहीं लेना है, टी, और टी के बाद यू नहीं लेंगे, वी लेंगे, आर टी वी। तो आर टी वी क्या है, आर टी वी इसमें है, ऑप्शन ए आर टी वी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बैट, बॉल और रैकेट का होगा शटल कॉक, है ना। बैट के साथ बॉल होता है और रैकेट के साथ कॉक का पैर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस question mark in the given figure matrix if the same rule is followed either row wise or column wise. If you look at this matrix carefully, you'll come to know that these are the number that comes in the table of the number which is given at the 3 5s are 15 and 3 9s are 27, 7 5s are 35 और 7 9s are 63 है। तो 8 5s are 40 होगा और 8 9s are 72, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 40, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द वर्ड फॉर्म्ड अरेंज्ड आफ्टर अरेंजिंग द गिवन लेटर। अगर इसको हम अरेंज कर दें तो इसमें से कौन सा वाला लेटर बनेगा। हाँ, इसमें ये बनेगा MARCH, मार्च, जो कि एक मंथ का नाम है। Now let us see question number 16. If teddy F is removed from the given arrangement, then which teddy is the fourth from the right end? अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो राइट एंड से कौन सा वाला फोर्थ टेडी होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सी। सी हमारा फोर्थ टेडी होगा राइट एंड से। क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द ऑड वन आउट, रिवर, पॉन्ड, लेक, रेन। इसमें देखिए कि रेन जो है, रेन की वजह से रिवर में, पॉन्ड में, लेक में वाटर कलेक्ट होता है और ये सबसे मेन सोर्स है वाटर का, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो कमेंटेटर लिखा हुआ इसमें से कौन सा वाला वर्ड नहीं बन सकता, तो इसमें से आपका कॉस्मोस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एस है और यहाँ पर एस नहीं है, तो ये वर्ड नहीं बन सकता इसमें से। देयर आर डैश
There are dash equal groups of flowers having 4 flowers in each group from the given flowers. अच्छा, ये जो फ्लावर्स हैं, जितने भी टोटल फ्लावर्स हैं, इसका अगर 4 फ्लावर्स का ग्रुप बनाया जाए, है ना, तो कितने इक्वल ग्रुप्स होंगे पहले देख लीजिए। इसमें कितने फ्लावर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल ग्रुप्स होंगे 4 फ्लावर्स करके। 7 4 सा 28, टोटल आपके 28 फ्लावर्स हैं। 7 + 7 + 7 + 7, और ये 28 को अगर आपको 4 के ग्रुप में डिवाइड करना होगा तो आपके पास 7 इक्वल ग्रुप्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर क्या है? 125, इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट किया गया है तो आया है 105, फिर 20 को सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर 20 सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर 20 सब्ट्रैक्ट किया गया। अब अगर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? अब अगर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 25। ऑप्शन सी, सॉरी इसमें हमने आंसर को टिक नहीं किया, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द पैटर्न गिवन फिगर। ये जो पैटर्न गिवन फिगर था इसको मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। अब आप इसको देख करके आइडेंटिफाई करिए कि ये वाला कौन सा फिगर है जिसने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये वाला है आपका सी, ये जो पार्ट है ना ये आपका सी पार्ट है। इसको ले जा करके अगर यहाँ रख देंगे तो ये इसको कंप्लीट कर देगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इन द फिगर देर आर डैश पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं? एक बॉय और एक गर्ल के। सचिन मीनू, सचिन कीर्ति, सचिन निधि, सचिन रितु, यानी कि 5 हो गए। अजय मीनू, अजय कीर्ति, अजय निधि, अजय रितु, यानी कि इसके भी 5 कॉम्बिनेशंस। राहुल के, राहुल मीनू, राहुल कीर्ति, राहुल निधि, राहुल रितु, सॉरी 4 है, 5 में कैसे गिन रही हूँ, 4 और फिर इसके भी हो गए 4, तो कितने हो गए? 4 + 4 + 4 12, 4 + 4 + 4 12, 4 3 4 ज़ा 12 कॉम्बिनेशंस आर देयर, 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23 is, in which of the following option figure X is exactly embedded as one of its part। ये वाला जो फिगर X है ये किसका पार्ट लग रहा है आपको? कौन से वाले फिगर का पार्ट ये लगता है? तो ये मुझे लगता है कि इसका पार्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस तरह का एग्जैक्टली बन रहा है, ये ऑप्शन सी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 24, वॉट इज़ द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर पैटर्न। ये गिवन फिगर पैटर्न में कौन सा वाला मिसिंग है? तो देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, फिर ये 1 है और ये 2 है, यहाँ पे 1 है। इसको रोटेट कर दिया गया, ये 3 वाला यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से इधर आ गया, फिर आ गया, फिर यहाँ से आ गया नीचे, फिर नीचे से कहाँ जाएगा? नीचे से जाएगा राइट में। तो राइट वाला राइट में होना चाहिए, हाँ, और ऊपर होने चाहिए 2 डॉट्स और इधर होना चाहिए 1 डॉट, इधर 2 डॉट्स, इधर राइट में 3 डॉट्स, ऊपर 2 डॉट्स और लेफ्ट में 1 डॉट, बी ऑप्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 25। इन क्वेश्चन नंबर 25, इन हाउ मेनी वेज कैन शीलू रीच हर होम। शीलू कितने तरीक़ों से अपने घर को पहुंच सकती है? जो बनाया गया है ना मैप, इसके हिसाब से पहले तो ये सीधा चली जाए 1, फिर यहाँ से ऐसे 2, फिर यहाँ से ऐसे 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ऐसे करके नीचे से 6, फिर ये नीचे वाला 7, फिर ऐसे 8, फिर ऐसे करके ऊपर 9। देर आर 9 पैटर्न्स, 9 ways in which she can reach her home. There are dash squares and dash circles in the given figure। ये given figure में कितने सर्कल्स हैं और कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 स्क्वायर्स हैं और एक सर्कल है, 16 स्क्वायर और एक सर्कल। Now let's see question number 27. Select the figure which is exactly same as the given figure। इस फिगर से कौन सा वाला exactly same है? देखिए ये
तो उल्टा बैठा हुआ, ये तो नहीं होगा, और इसकी तो रिबन अलग है तो ये भी नहीं होगी। इन दोनों में से कोई एक हो सकता, तो इन दोनों में से कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके थॉट प्रोसेस के 3 डॉट्स दिखा रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही डॉट्स है, तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इसके भी थॉट प्रोसेस में 3 डॉट्स हैं, इसके भी थॉट प्रोसेस में 3 डॉट है। समझे? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 इज 4 फ्रेंड्स रैन इन अ रेस कॉम्पिटिशन्स। 4 फ्रेंड्स हैं जो कंपटीशन में दौड़ रहे थे। मोहित स्टूड लास्ट, मोहित लास्ट हो गया। रोहन इज नॉट थर्ड एंड रिया इज नॉट फर्स्ट। अच्छा, रोहन थर्ड नहीं है, रिया फर्स्ट नहीं है, बट कीर्ति स्टूड आफ्टर रोहन एंड बिफोर रिया, यानी कि कीर्ति बीच में है। कीर्ति स्टूड आफ्टर रोहन, तो रोहन यहाँ होना चाहिए, एंड बिफोर रिया, तो रिया होनी चाहिए थर्ड पोजीशन में। तो हु स्टूड एट द थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में कौन है? थर्ड पोजीशन में आई हमारी रिया। कीर्ति स्टूड आफ्टर रोहन बिफोर रिया, तो कीर्ति बीच में है, उसके बाद आपको रोहन और रिया को बैठा देना है एज पर द कंडीशन गिवन हियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 29 बहुत सिंपल है। इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना, इनकरेक्ट ऑप्शन एकदम आपको सामने से समझ में आ जाएगा कि ये है, ये ट्राइंगल है, और ये किस तरह से ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये सर्कल है तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये फेस, ये तो सर्कल होता है, ये इसमें भी स्क्वायर का फेस है, इसमें रेक्टेंगुलर फेस है, मगर इसमें ट्राइंगल का कुछ नहीं है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर का, क्लास 3 IMO का। इफ़ द कोड फॉर राइट इज SGHIU। अब देखिए R का क्या है? R के बाद वाला नेक्स्ट लेटर S, I के बाद वाला नेक्स्ट लेटर J, G के बाद वाला नेक्स्ट लेटर H, I के बाद वाला H के बाद वाला नेक्स्ट लेटर I, T के बाद वाला नेक्स्ट लेटर U। फाइंड का हमें पूछा गया कि क्या कोड होगा। F के बाद क्या होगा? H, I के बाद J, N के बाद O, और D के बाद E, S के बाद T ना। अब देखिए MJOET कहाँ है? सॉरी, GJOET। जब मैं हड़बड़ी में होती हूँ ना तो मैं उल्टा ही बोलती हूँ। GJOET हमारा ऑप्शन A है, और A हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारे सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अब हमें NSO कंप्लीट करना है क्लास 3 का। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक दें। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक दीजिए वीडियो को। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।